Good morning, भैया बहनों. Yesterday I told you tense, and I also told you how many types of tense: present tense, past tense, and future tense. And I also define you present indefinite, present continuous, present perfect, and present perfect continuous tense. Today I am telling you about helping verb. Helping yesterday I told you when we frame a sentence, so we need at first subject, which I told you yesterday. Then we need helping verb. Without helping verb, we can't frame a sentence. If we want to frame a sentence, so we need helping verb. So what are the helping verb? What are the helping verbs? What are the helping verb? हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि नाम से हमको जानकारी हो रही है कि जो मेन वर्ब के सपोर्ट के लिए वी यूज द हेल्पिंग वर्ब. इफ यू वांट टू फ्रेम ए सेंटेंस, वी नीड आल्सो ए हेल्पिंग वर्ब टू कंप्लीट ए सेंटेंस. What are the helping verb? Some helping verb I am going to write down on the blackboard. You will see do and does, is, am, are, have, has, did, was, were, had, will, and shall. These are the helping verb. Do and does, is, am, are, have, as, did, was, were, had, will, and shall. These helping verb we use as per tense. What helping verb we use in present indefinite? What helping verb we use in present continuous tense? What helping verb we use in present perfect tense? And what will we use helping verb in present perfect continuous tense? So, as per tense, we use the helping verb. Without helping verb, we can't make a sentence properly. As you know, सिंपल जो सेंटेंस का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा. दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर. This is the common structure. If you want to make any sentence, so we use the common sentence structure: subject, helping verb, main verb, object, and etc. Without this structure, this formula, we can't make a sentence. Tense यदि हम लर्न कर लेंगे, यदि हम उसको अच्छी तरह अपने माइंड में सेटअप कर लेंगे, तो फिर हम एज पर टेंस सेंटेंस बना देंगे. जैसा कि एज वी नो देयर आर द 12 टाइप्स ऑफ द टेंस हो गए. प्रेजेंट के 4 पार्ट हो गए, पास्ट के 4 पार्ट हो गए, फ्यूचर के 4 पार्ट हो गए. टोटल 12 टाइप्स ऑफ द टेंस हो गए एज पर अकॉर्डिंग टू टेंस. तो उनको यदि हम उसका फॉर्मूला, व्हाट हेल्पिंग वर्ब वी यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, व्हाट हेल्पिंग वर्ब वी यूज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
what helping verb we use in present perfect and what helping verb we use in present perfect continuous tense. If we will learn what helping verb we use in according to tense, so then we can make a sentence properly. Yesterday I told you what is the subject. I told you I, we, you, he, she, it, any, singular name and they, these are all subjects. I ask a question, I and we, first person. Yesterday I told you कि I and we, these are the first person. You and you, both are second person. He, she, it, any singular name and they, though, these are all third person. So if you want to know about the tense, so we should have the knowledge first of all subject, what is the subject and what is the helping verb and what is the main verb and what are the object and etc etc. मेन वर्ब यू नो, जैसा कि जो कोई भी काम यदि कोई एक्ट करता है तो वो मेन वर्ब से होता है, जैसे गो, कम, सिंग, रिंग, दैट इज टाइप ऑफ द मेन वर्ब. गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, दीज आर द मेन वर्ब. क्योंकि विदाउट मेन वर्ब वी कांट मेक ए सेंटेंस. तो मेन वर्ब भी वी शुड हैव द नॉलेज. तो मेन जो वर्ब है वो भी दिस इज द मोस्टली फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड. जैसे गो, वेंट, गोन, ये वर्ब्स की फॉर्म है. क्या है ये? फॉर्म ऑफ वर्ब्स. गो, वेंट, गोन. इसी प्रकार से सिंग, सैंग, संग. इसी प्रकार से ब्रिंग, ब्रोट और ब्रॉट. These are the main verbs. These are the main verbs. As per tense, we use first forms. As per tense, we use second form. And as per tense, we use the third form. In English, जो जैसा कि हम बोलते हैं कि फोर्थ फॉर्म होता है, उसको लगभग ज़्यादातर जो भैया बहन है उसको फोर्थ फॉर्म बोलते हैं. जो फोर्थ फॉर्म होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दैट इज कॉल्ड, जिसको कि वर्ब की हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फोर्थ फॉर्म. बट दिस इज द नॉट फोर्थ फॉर्म, दिस इज द यूज फॉर जेरेंड. इसको हम जेरेंड बोलते हैं. और एक फिफ्थ फॉर्म और होता है जिसको हम बोलते हैं फिफ्थ फॉर्म को टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि टू के साथ यदि वर्ब की फॉर्म कनेक्ट होती है तो दैट इज कॉल्ड द फिफ्थ फॉर्म. पर दैट इज नॉट ए फिफ्थ फॉर्म, दैट इज द इन्फिनिटिव वर्ब. तो देर आर द मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड. मोस्टली द मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. बट आईएनजी वाली जो फॉर्म है उसको जेरेंड बोलते हैं और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं. तो इफ यू वांट टू मेक ए सेंटेंस तो वी यूज sometime टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म व्हेन वी यूज, जब एक सेंटेंस में मेन वर्ब भी होता है और दूसरा वर्ब भी होता है. जैसे एक सेंटेंस में आपको बता रहा हूं कि हाउ टू वी यूज आई एम गोइंग टू टीच यू. So that is called fifth form. टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, that is called fifth form. To teach, that is the main verb. That is the main verb. As per tense we use going.
बट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज द इन्फिनेटिव. तो समटाइम्स वी यूज द टू वर्ब इन ए सेंटेंस, then we use the two verb in a sentence, so then we use the second verb with टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. टू के साथ always we use फर्स्ट फॉर्म. तो a sentence we want to make, so we should have the knowledge subject, helping verb, main verb, then object. Next question, the what is the object? What is object? ऑब्जेक्ट क्या है? यदि हम वर्ब में क्वेश्चन कर दें, एक जनरल फॉर्मूला है, तो दैट इज द कॉल्ड ऑब्जेक्ट. वर्ब में यदि हम व्हाट क्वेश्चन कर दें तो हमारे सामने ऑब्जेक्ट निकल के आता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल रीड, व्हाट? The newspaper, the magazine, the book. Sing, what? कोई सॉन्ग हो सकता है, कोई पोएम हो सकता है, कोई राइम हो सकता है, कोई लिरिक्स हो सकता है. ठीक है, इसी प्रकार से ये ऑब्जेक्ट निकल के आता है. और इसके अलावा एक सेंटेंस में फिर इसके अलावा जो भी विच वी यूज, वो दैट इज कॉल्ड एक्सेट्रा. जैसे सपोज करो, आई एम गोइंग टू टीच यू. ये यू जो है ये ऑब्जेक्ट है. ये क्या है? सब्जेक्ट है. ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. ये क्या है? मेन वर्ब है. ये क्या है? टू प्लस इन्फिनेटिव है. और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. इसके अलावा यदि हम किसी सेंटेंस में और वाक्यों को जोड़ते हैं तो दैट इज वो सेंटेंस कितना भी, लेकिन जनरल जो फॉर्मूला है आई एम गोइंग टू टीच यू. अब इसमें आगे हम जोड़ सकते हैं आई एम गोइंग टू टीच यू इन द क्लासरूम. इन द क्लासरूम एक्सेट्रा हो गया. आई एम गोइंग टू टीच यू विद माई फ्रेंड, मैं आपको मेरे दोस्त के साथ पढ़ा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू टीच यू अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको मैं सुबह जल्दी पढ़ा रहा हूँ. तो एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा जिसको कहते हैं कि कुछ भी हम सेंटेंस में आगे हम उसको जोड़ सकते हैं. बट जनरल जो स्ट्रक्चर, एनी टेंस कोई भी टेंस हो, जनरल जो स्ट्रक्चर है वो हमारा ये स्ट्रक्चर है. बस हम व्हाट वी चेंज, ओनली वी चेंज हेल्पिंग वर्ब एज पर टेंस, मेन वर्ब एज पर टेंस, object. If we have a object in a sentence, so we can use, otherwise there is no need. So we should have the knowledge as per tense, what helping verb we use, what main verb we use. main verb भी as per tense we use. For example, in present indefinite we use the verb की first form. In present continuous we use verb की first form plus ing. In present perfect we use verb की third form. And present perfect continuous tense we use again verb की first form plus ing. तो we use main verb as per tense. तो if you want to know about the tense, so only two things you should have. What? First of all, which tense we are using and what helping verb we will use. Which tense we are using, what helping verb we shall use. Because we know as per tense we shall use helping verb. I told you what are the helping verb: do, does, is, am, are, have, has, did, was, were, had, will, shall and etc. So these are the helping verb. So students, tense is very easy in English. Only आपको
टेंस के अकॉर्डिंग 12 हेल्पिंग वर्ब याद करना है कि इस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। और जो मेन वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनेट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनेट हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। खैर पास्ट इंडेफिनेट में अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इसी प्रकार तीनों प्रकार के कंटिन्यूस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, वी यूज द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देन तीनों प्रकार के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैं, वी यूज द वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन तीनों प्रकार के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो वी यूज द अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब एक क्वेश्चन रेजिंग इन योर माइंड कि सर in present continuous, in present perfect continuous, both sentence, in both sentence we use the verb की first form plus ing. तो what are the difference between both tenses? Only one difference. I will tell you when I teach you this tense, then I tell you. But I am telling you now कि only one difference. In present continuous tense we use the verb की first form plus ing. In present perfect continuous tense we use the verb की first form plus ing. But in present perfect continuous tense we use verb की first form ing plus में टाइम यूज करते हैं। टाइम के लिए we use since and for। बस इतना सा डिफरेंस आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि दोनों कंटिन्यूस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, दोनों में आईएनजी वाली वर्ब की फॉर्म लग रही है। बट डिफरेंस क्या, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बोथ? ओनली वन डिफरेंस, इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वी यूज आल्सो टाइम। फॉर एग्जांपल जैसे आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मैं एग्जांपल बता रहा हूं। आई एम टीचिंग यू फॉर 30 मिनट्स, तो यानी कि 30 मिनट से मैं आपको टीचिंग कर रहा हूं, आपको टीच कर रहा हूं, तो इसमें फॉर 30 मिनट्स ये टाइम यूज हुआ, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, कोरोना चल रहा है, हम सबकी बाउंडेशन है कि ऑनलाइन क्लासेस लेना हमको ज़रूरी है, आपकी भी बाउंडेशन है कि आप इसको घर पर पढ़ेंगे। ओनली बस एक डिफरेंस ऑनलाइन क्लास में है कि हमारा आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, आपकी जो क्वेरीज है वो आप हमसे पूछ नहीं पा रहे, लेकिन उसके लिए मैंने आपको कल भी बताया था कि आप फ़ोन पर आपकी क्वेरीज पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं उसमें आप मैसेज डालकर आपकी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और जो आपको ये वीडियो जो भेजा जाएगा गूगल क्लासरूम के माध्यम से, इसको आप आराम से इसको समझें, आराम से समझें, और समझ करके फिर जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो आप होमवर्क भी उसमें नोट करेंगे। तो आज का होमवर्क केवल इतना ही है कि आपको जो पढ़ाएगा इसमें आप समझेंगे कि व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज द सब्जेक्ट, व्हाट इज द मेन वर्ब। और ओनली जो होमवर्क है आज का, विच आर यू गिवन, जो होमवर्क है वो ओनली ये है कि 50 मेन वर्ब्स 3 फॉर्म्स में आप राइट डाउन करेंगे। 50 मेन वर्ब्स, 50 मेन वर्ब्स, गो, सिंग, रिंग, बाय, ब्रिंग, टीच, है ना, कम, टेक, ड्राइव, सेलिब्रेट, है ना, मेक, दिस टाइप्स ऑफ आप 50 मेन वर्ब आप राइट डाउन करेंगे, उनको लर्न करेंगे। आज का होमवर्क इतना है। थैंक यू सो मच। गूगल क्लासरूम डाउनलोड नहीं किया हो तो डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको ये मटेरियल आपको भेजा जा रहा है, और जब भी आपकी मैनुअल क्लासेस होगा उसको आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।